Now today we are going to discuss about the numerical problem of your chapter as a AC current. So in that numerical problem, first we are going to discuss about the MCQ question. Now what that MCQ questions are there? So see here, that is your page number 304, and for that page number 304, your first question is nothing but your MCQ question. Now in that MCQ question, you have given first, if RMS current, you have given if RMS current in 50 Hertz AC circuit is 5 ampere, the value of current 1/300 second after its value becomes 0x. So you have given here IRMS is given as a 5 ampere. Frequency of AC is given 50 Hertz. Clear? And what you have to calculate? You have to calculate the current after 1/300 second. So you have to calculate current after time interval 1/300 second. Clear? Now you have a current equation. Current I is equal to I0 sin omega t. Fine. You want to calculate this current I. Omega means you can put the value 2 pi n, and here is the I0. Fine. I0 is nothing but your peak current. So how you can find peak current? To find out the peak current, what formula I write down? Here I write down IRMS is equal to I0 upon root 2. Means your I0 is equal to nothing but root 2 IRMS. And you are given the value of IRMS. IRMS value is what? 5. So what I write down here? 5 root 2 ampere is nothing but your I0. So I will put it here. 5 root 2 sine, instead of omega, value of omega I can put it as a 2 pi n. N is nothing but frequency. So what I write down? 2 pi n value. N is nothing but 50. And time interval is given 1/300. So 50 and 300 will get cancelled as a 6. So this 2 and 6 again get cancelled as a 3. Means what I am getting? 5 root 2 sine of pi by 3. And sine pi by 3 is nothing but your sine 60. Is it right? And for sine 60, you have to calculate the value. So you all know that your sine 60 is nothing but, value of sine 60 is nothing but root 3 by 2. Means what I am getting here? 5 root 2, it is root 6 upon. So this is nothing but your value, or I can say, I can convert this as a 5 upon 6/4. This 2 को यहाँ पे अंडर रूट में ले लेंगे. So here it is 3/2. So what I am getting current? 5 root 3/2 ampere. So this is nothing but your current after time interval 1/300 second. So that is your option number B. Fine. After this, next thing is given a current of 500 ohm. Sorry. A resistance of 500 ohm, inductance 0.5 Henry are connected in series with an AC source is given by V is equal to 100 root 2 sine 1000 t. Then power factor of the combination. ये आपके syllabus में नहीं है power factor, so omit this. Then I am going for the next one is nothing but in the circuit LCR connected in series, alternating voltage of frequency N, current leads the voltage
by 45 degree, then the value of C is that you have to find out. Clear? So you have given current leads the voltage by angle of 45 degree. Then you have to find out the value of C. Is it right? So current is leading. Current is leading means what I can say that current leads the current leads the voltage by 45 degree. Means ये आपका कैपेसिटिव सर्किट है. कैपेसिटिव सर्किट में what I can say XC, which is equal to 1 upon omega C, which is equal to what is that? 1 upon 2 pi FC. Is it right? And what is given? It is leading by angle of 45 degree. So what I can say here, यहाँ पे इस C के across जो करंट आएगा, तो I will say that it is leading by angle 45 degree. Okay, IC are connected in series, so you have to find out the value of C. Here, so I can use there as a impedance Z मैंने यूज किया. Okay, so what I will say here, this is your XC. Current is leading. Current leads the EMF 45 degree. Means आपका EMF E is equal to E0 sin omega t plus 45 degree. 45 degree से leading होगा EMF. आपका फेजर डायग्राम, I can draw this फेजर डायग्राम in this way. यहाँ पे ओमेगा टी है एंड देन 45 डिग्री से पेन 45 डिग्री से आगे somewhere I can show like this. ये हो गया 45 डिग्री. ये हो गया this EMF is nothing but E0 sin of omega t plus 45 degree. So using that I can find out the density. Okay, fine. Then MCQ 4. In an AC circuit, E and I are given as E is equal to. You have given AC circuit. And in that AC circuit, you have given the EMF E is equal to, you have given the value as a 150 sin of 150t, and I is equal to, and आपको करंट दिया है, करंट I is equal to 150 sin omega t plus, it is, sorry, here it is 150t plus pi by t. The power dissipated in the circuit is, ये भी आपका पावर डिसिपेशन का है जो आपका आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन है. ओके, उसके बाद में ये पांचवा भी आपका वही है, पावर फैक्टर का ही है. इज इट राइट? तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वैसे. आई कैन शो यू. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपका करंट लीडिंग स्टेज में है. करंट लीडिंग स्टेज में मीन्स व्हाट इट इज अ कैपेसिटिव सर्किट, right? And in capacitive circuit, your power dissipation is always equal to 0. So power dissipation is always 0. In which circuit? In inductive circuit as well as in capacitive circuit.
उसके बाद में आपको पांचवा जो दिया है, इन सीरीज LCR सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 45 डिग्री, देन द पावर फैक्टर। आपको फेज डिफरेंस मीन्स फाई का वैल्यू 45 डिग्री दिया है एंड द सर्किट इज गिवन LCR सीरीज। क्लियर? तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू, एक्चुअली ये आपके सिलेबस से निकाल दिया लेकिन MCQ इसलिए मैं बता रही हूँ। पावर फैक्टर फॉर्मूला है cos फाई का वैल्यू 45, सो cos ऑफ 45 इज 1/√2, right? And 1/√2 is nothing but 0.707. So this is nothing but your power factor. Clear? Fine. Now we can switch over to the numerical problem. आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखो डायरेक्टली है प्रॉब्लम नंबर 12। उस प्रॉब्लम नंबर 12 में आपको पूछा है if the effective current in 50 cycle AC circuit is 5 ampere. Now effective current is nothing but your RMS current. तो आपको वहां पे दिया है फ्रीक्वेंसी n is equal to 50 and आपका effective current is a RMS current which is equal to 5 ampere. Okay, then what is the peak value of current? आपको peak value of current निकालना है I0। उसके बाद what will be the current after 1/600 second after it will become 0? means मुझे I कैलकुलेट करना है at time interval 1/600 second, then that current will become 0. Fine. Now first मुझे कैलकुलेट करना है peak current. Peak current कैलकुलेट करना तो what I get the formula IRMS is equal to I0 upon √2. So what I say that peak current I0 is equal to √2 √2 into IRMS, and √2 into IRMS means what I write down here 5√2 is nothing but the value of I0. Clear? Okay. उसके बाद मुझे क्या निकालना है करंट I आफ्टर टाइम इंटरवल 1/600 सेकेंड। So what I put current I is equal to I0 sin of omega. Right? I will write down here I0 sin of instead of omega 2 pi nt. Got it? I0 का वैल्यू मेरे पास है 5√2 sin 2 pi फ्रीक्वेंसी वैल्यू 50 into 1/600। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ये 0 कैंसिल, 5 will get cancel with 60 as a 12, ये 2 यहाँ कैंसिल होगा 6 से, तो यहाँ क्या बचा 5/6। So what I write down here I is equal to 5√2 sin of 5/6. So 5/6 means what? 30. So what I say here 5√2 into sin of 30 is half. So it will be become as a 5/√2 ampere. That is nothing but as your current after 1/600 second. तो ये यहाँ पे आ गया मेरा पीक करंट एंड ये आ गया मेरा करंट आफ्टर 1/600 सेकेंड। क्लियर? ओके। उसके बाद देयर इज ए प्रॉब्लम नंबर 13। उस प्रॉब्लम नंबर 13 में आपको एक लाइट लैम्प दिया है और उस लाइट लैम्प को क्या पूछा आपको लाइट लैम्प इज रेटिंग 100 watt at 220 volt AC supply of 50 hertz. Power दिया है, the power is given 100 watt. Then आपका supply दिया है, here it is supply is given as your 220 volt AC. 220 volt AC एंड आपकी फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज। नाउ फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, दैट इज द फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग यू हैव टू कैलकुलेट IRMS। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। फाइन। सो नाउ फर्स्ट व्हाट आई राइट डाउन
मुझे यहाँ पे पावर दिया, ये EMF दिया E, तो व्हाट आई राइट पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू E इंटू R. तो आई फाइंड I इज इक्वल टू P अपॉन E. P कितना है आपका, देखो P इज गिवन 100, E इज गिवन 220. तो मुझे ये करंट मिला, करंट आई एम गेटिंग एज ए 10/22. 10/22 इसको कैंसिल करके मैं लिखूंगी 5/11 एम्पियर. ये मेरा करंट आ गया. वंस आई एम गेटिंग द करंट, व्हाट आई फाइंड IRMS. इज इट राइट? तो यहाँ पे ये मुझे करंट मिला है. फ्रॉम दैट नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए नाउ मैं पावर का फॉर्मूला लिखूंगी. पावर P इज इक्वल टू नथिंग बट I² अपॉन R. ये मेरा पावर का फॉर्मूला है, सॉरी E² बाय R, ये मेरा पावर का फॉर्मूला है. तो व्हाट आई राइट, R इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाइड बाय 220 अपॉन पावर मेरा कितना है 100. तो यहाँ देखो ये 0 कैंसिल हो गए, तो पावर आ गया मेरा 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 मीन्स इट इज 484. ये आ गया मेरा रेजिस्टेंस. क्लियर? Now once I am getting this resistance, using that resistance, now I am going to calculate the RMS current. So I will say here IRMS is equal to nothing but ERMS upon R. मेरा ERMS कितना है, that is 222 divided by R मेरा आ गया 484. तो 22 1s are 22s are यहाँ आ गया मेरा 10. सो इट इज 10 बाई, ये मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ करंट है 5/11 एम्पियर. सो दैट आई एम गेटिंग. तो इसको अगर सॉल्व किया मैंने तो 0.426 बच जाएगा, फिर 5 बच जाएगा. तो दैट आई एम गेटिंग एज ए आयरन दिस मच. ओके, देन प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे 14. आपको कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटर 15 माइक्रोफैराड. सो प्रॉब्लम नंबर 14, आपको कैपेसिटर दिया है C इज इक्वल टू 15 माइक्रोफैराड. ओके, उसके आगे is connected to 20 volt at frequency 50 hertz. It is connected to 20 volt frequency 50 hertz. Okay, उसके बाद you have to calculate, find the capacitive reactance and current. आपको capacitive reactance XC and current फाइंड आउट करना है. ये एक टर्म. उसके बाद आपको दिया है if the frequency is double, आपकी जो f dash है वो 2f हो गई. At that time what is xc dash and what is I dash, ये आपको देखना है. ये सब कुछ इतना पूछा है. क्लियर ना? अभी पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना है रिएक्टेंस. क्लियर? तो आई विल कैलकुलेट xc. xc इज इक्वल टू 1/2 pi fc which is equal to 1/2 pi का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड यहाँ पे है आपका 15 माइक्रोफैराड. माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करेंगे. माइक्रोफैराड का फैराड में कन्वर्जन है 10⁻⁻⁶. तो यहाँ पे देखो अभी क्या आएगा, 2 × 50 ये करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 315. तो 10⁻⁶ को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो +6 बन जाएगा. 314 मल्टीप्लाइड बाय 50. तो यहाँ पे 10⁻⁶, 15 4 are 16, 6 कैरी, 21 2 कैरी, 47 इतना आ गया. तो इसका कैलकुलेशन, दिस इज योर XC. तो मेरा वहाँ पे XC आएगा दैट इज 212 ओम. ये आ गया मेरा XC. नाउ वंस आई गॉट XC, नाउ I have to calculate the, you have to calculate what, करंट. RMS करंट भी कैलकुलेट करना है और पीक करंट भी कैलकुलेट करना है. दोनों करंट करना है. I0 भी करना है, IRMS भी करना है, दोनों कैलकुलेट करना है. तो व्हाट आई डू नाउ,
आई विल राइट द फॉर्मूला पहले। अभी मुझे XC मिल रहा है, नाउ आई विल राइट डाउन EMF across capacitor is equal to XC into R. Is it right? अभी EMF across capacitor मैंने एज्यूम किया 220, XC है मेरा 212 आया है इनटू करंट, तो मेरा करंट आ जाएगा 220 अपॉन 212। तो 220 अपॉन 212 किया तो मुझे मिलता है 1.04 एम्पियर। ये आ गया मेरा IRMS करंट। दिस इज योर IRMS करंट। ये मेरा IRMS आ गया। तो आई कैलकुलेट नाउ I0 इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS। तो क्या आएगा √2 इंटू 1.04। तो इफ आई डू दैट कैलकुलेशन आई एम गेटिंग 1.47 एम्पियर। √2 का वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। √2 का वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 1.04। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 1.47 एम्पियर। ये आ गया आपका पीक करंट, ये आ गया आपका आरएमएस करंट। अभी आपको क्वेश्चन क्या है, इफ द फ्रीक्वेंसी गेट डबल देन व्हाट विल बिकम XC। अभी आपका XC का फॉर्मूला है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आपकी अगर फ्रीक्वेंसी f डैश हो गई टू f तो आपका XC डैश क्या हो जाएगा, XC/2 हाफ हो जाएगा। अगर आपका XC/2 हाफ हो गया तो यहाँ पे आपका करंट डिक्रीज होगा, सॉरी XC डिक्रीज हो गया। XC डिक्रीज हो गया मीन्स व्हाट, योर करंट IRMS विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। आपका करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, योर करंट विल गेट डबल। तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा और जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ होता है आपका करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 14। नाउ योर प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 में है आपका इंडक्टर कनेक्ट किया है अक्रॉस AC। तो AC के अक्रॉस जो इंडक्टर कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है। तो अक्रॉस AC आपका इंडक्टर है 2 हेनरी। करंट रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड। करंट का एम्पलीट्यूड दिया मीन्स I0 0.25 एम्पलीट्यूड। अभी देखो करंट इज साइन वेव मीन्स ऐसे साइन वेव है तो ये जो साइन का पिक रहेगा, ये पिक ये करंट का रिप्रेजेंट किया बाय साइन वेव, तो ये जो साइन वेव का पिक रहेगा दैट इज IC। तो मुझे क्या दिया है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स ये दिया है मुझे। तो दिस एम्पलीट्यूड इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, IC। तो I0 मुझे कितना दिया है, 0.25 एम्पीयर। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दिया है 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज गिवन 60 हर्ट्ज। एंड what you want to calculate, we want to calculate effective potential difference across inductor। इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुझे निकालना है। तो व्हाट आई राइट डाउन, potential difference across inductive is equal to EL is equal to XL into IRMS। Correct? Now XL is equal to 2 pi f into L, that is the value of XL। IRMS is nothing but √2 into I0। Clear? IRMS is equal to I0 so that value I am going to substitute there। So if I substitute that value, what I am now going to calculate, आपको क्या दिया है, ओके तो अभी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 पाई का वैल्यू आई थिंक यहाँ दिया है, पाई का वैल्यू लेना है 3.142। जस्ट रिमेंबर जब आपको पाई का ये पूरा वैल्यू दिया है तो आपको वो पूरा लेना है, शॉर्टकट नहीं लेना है।
अगर कुछ भी वैल्यू ऑफ पाई नहीं दिया तो यू कैन टेक 3.14, लेकिन अगर वैल्यू दिया है क्वेश्चन पेपर में तो यू हैव टू टेक दैट कंप्लीट वैल्यू। फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, इंडक्टर कितना है 2, एल I0 कितना है 0.25 डिवाइडेड बाय, बराबर। अभी ये देखो ये 2 और ये 2 हो गए 4, 2 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 हो जाएगा 100, 100 के पॉइंट प्लेस होने के बाद 100 तो ये डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन √2, ये बच गया। सो यूजिंग दैट यू हैव टू डू दैट कैलकुलेशन। तो अभी ये कैलकुलेशन करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला 0 रख लेंगे, 6 2 12, 1 कैरी, फिर 25, 2 कैरी, यहाँ पे आएगा 8, देन 18 एंड √2 का वैल्यू 1.414। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, इज इट राइट? एंड आफ्टर दिस कैलकुलेशन व्हाट आई एम गेटिंग, इफ आई डू दिस कैलकुलेशन, ये डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद मुझे आंसर आता है 133 30 क्लियर। तो ये आ गया आपका फाइन। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 15। नाउ आई कैन गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 क्या है? अल्टरनेटिव EMF E इज इक्वल टू 220 साइन दिया है 100 पाई, इतना दिया है। अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर दिया है 1/पाई हेनरी। Write an equation of instantaneous current to the circuit and what will be the reading of AC galvanometer connected in the circuit, right? तो मुझे instantaneous current I निकालना है and I have to take the value of I0. I0 means reading on voltmeter। AC voltmeter पे क्या रीडिंग है वो रीडिंग मुझे कैलकुलेट करनी है, that is IRMS, वो रीडिंग मुझे लेनी है। इज इट ओके? तो नाउ फर्स्ट ये मुझे इस इक्वेशन से क्या क्या पता चल जाएगा, देखो मैं लिखूंगी E0 मिल गया 220 वोल्ट, फिर मेरा ओमेगा का वैल्यू आ गया 100 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f इज इक्वल टू 100 पाई, दोनों साइड से पाई पाई कैंसिल, तो 2f इज इक्वल टू 100, इसका मतलब मुझे f मिल गया 50 हर्ट्ज। ओके, अभी मुझे क्या निकालना है? आई वांट टू कैलकुलेट करंट का इक्वेशन कैलकुलेट करना है। करंट का इक्वेशन कैलकुलेट करना है मीन्स नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द करंट का इक्वेशन। पहले लिखेंगे I इज इक्वल टू I0 साइन, अभी यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर है, AC के अक्रॉस जब इंडक्टर होता है तो एट दैट टाइम उसका करंट इक्वेशन क्या होता है? ओमेगा टी माइनस करंट। इंडक्टर में क्या रहता है? करंट लैगिंग स्टेज में रहता है, करंट लैगिंग स्टेज में रहता है बाय हाउ मच फेज एंगल? पाई 2। तो ये मेरा करंट इक्वेशन आ गया। अभी इस करंट इक्वेशन में मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है I0। तो I0 अगर मुझे निकालना है तो आई हैव टू कैलकुलेट दिस I0 फॉर्मूला निकालना, तो I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन XL, बराबर। E0 कितना है मेरा? 220, XL मीन्स आई से दैट इट विल बी रिटन एज ओमेगा L। यहाँ पे देखो ओमेगा कितना है मेरा? 100 पाई ओमेगा है, L कितना है मेरा? 1/पाई, पाई विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पे मेरा I0 कितना आ गया? I0 इज गेटिंग, ये 0 कैंसिल हो गया 2.2, ये वैल्यू आ गई मेरी I0। इज इट राइट? अगर ये मेरी I0 की वैल्यू आ गई तो व्हाट आई से हियर? इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू 2.2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई 2। ये मेरा आ गया इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन। क्लियर?
फिर यहाँ मैं ओमेगा की वैल्यू डाल सकती हूँ, ओमेगा मेरे पास है हाउ मच 105। तो ये आ गया मेरा इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन। क्लियर? अभी ये इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन आ गया। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है मुझे? रीडिंग ऑन एसी गैल्वेनोमीटर। सो रीडिंग ऑन एसी गैल्वेनोमीटर, एसी गैल्वेनोमीटर रीड्स करंट आयरन्स, और करंट आयरन्स का फॉर्मूला I0/√2, और मेरा I0 निकाला है। I0 कितना है? 2.2। सो दैट आई राइट 2.2 डिवाइडेड बाय √2 which is equal to 2.2, √2 का वैल्यू 1.414। तो ये आएगा मेरा, दिस वैल्यू आई एम गेटिंग एज ए 1.555 एम्पियर। तो ये आ गया मेरा रीडिंग ऑन एसी वोल्टमीटर। अगर वहां पे डीसी दिया होता, इज इट राइट? अगर वहां पे डीसी दिया होता तो मुझे पिक करनी कैलकुलेट करनी। गॉट इट? यहाँ पे मुझे AC पूछा है, AC मीन्स आयरन्स, राइट? ओके, देन प्रॉब्लम नंबर 17। इन दैट प्रॉब्लम नंबर 17 I can say here, in problem 17 you have given capacitor, inductor and resistor। कैपेसिटर दिया है, इंडक्टर दिया है एंड रेजिस्टर दिया, ऑल 4 वैल्यूज है। सी कितना दिया? 25.125, 25 माइक्रोफैरड, 25 ओम एंड 0.1 इंडक्टर दिया। उसके बाद उसको अक्रॉस एसी ईएमएफ के अक्रॉस कनेक्ट किया। E इज इक्वल टू 310 साइन ऑफ क्या दिया है? 340। इतना ईएमएफ के अक्रॉस उसको कनेक्ट किया है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस मींस एक्सएल, एक्ससी, ये करना है। फिर इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मींस जेड कैलकुलेट करना है। फिर करंट कैलकुलेट करना है एंड यू हैव टू कैलकुलेट फेज एंगल। इतना सब कुछ कैलकुलेशन करना है। क्लियर? नाउ स्टेप वाइज जाएंगे। पहले फ्रीक्वेंसी, ये इक्वेशन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चल जाता है? E0 इज 310 वोल्ट, ओमेगा ये वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 314। अगर ओमेगा इज 314 तो ओमेगा का मैं फॉर्मूला लिख सकती हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। सो f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 314 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 314। तो इसको मैं ये डेसिमल पॉइंट निकाल के यहाँ पे अगर 10⁻² रखा, ये कैंसिल हो जाएगा, -2 न्यूमरेटर में जाके +2 बन जाएगा। तो 100/2 मीन्स मेरी पहली फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 50 फर्स्ट आंसर मिल गया। ओके, उसके बाद सेकंड इज एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा एल। ओमेगा कितना है मेरा? 314। एल कितना है? 0.1 मीन्स एक्सएल कितना आएगा? 31.4 ओम। एक्सएल इज ए इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। सो मेरा एक्सएल कितना आ गया? 31.4 ओम। दूसरा एक्ससी विच इज इक्वल टू 2πfc। क्लियर? और आई कैन से दैट ओमेगा है तो ओमेगा से 1/, ओमेगा कितना है? 314। फ्रीक्वेंसी कितनी है? सॉरी कैपेसिटर 25 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड मींस -6 को न्यूमरेटर में जाके +6, 25 टू दिस मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4s are 100, 10 क्या है? 25 1s are 25 प्लस 10 35, 5 लिखेंगे, 3 क्या है? 25 3s are 75 प्लस 2 7850। इसका रेसिप्रोकल एंड इसको 10⁻6 में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे मिलता है वहां पे मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल टू 127.3 ओम। ये आ गया मेरा एक्सी। ये आने के बाद
मेरे 3 क्वांटिटी हो गए. नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इम्पिडेंस. अभी मुझे इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है. तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू R कितना है मेरा 25 है. सॉरी 25. सो 25 स्क्वायर प्लस XL कितना है मेरा 31.4 माइनस 127.2 इसका स्क्वायर. सो मेरा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर 625 प्लस इन दोनों का सब्सट्रैक्शन. तो इन दोनों का मेरा सब्सट्रैक्शन आता है. मैंने अगर कैलकुलेट किया तो इनका सब्सट्रैक्शन 95.9 विथ निगेटिव सी उसका स्क्वायर. तो फिर 625 प्लस इसका स्क्वायर 95.9 उसका स्क्वायर आता है 9196.81. फिर इन दोनों का एडिशन किया तो ये 81 एज इट इज. ये 5 प्लस 6 11 1 यहाँ पे आ गया 2 यहाँ पे आ गया 8 स्क्वायर रूट ऑफ 9821.81. इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट आता है आपका इम्पिडेंस. आपका इम्पिडेंस यहाँ पे आता है 99.01 इसका स्क्वायर रूट. तो ये आ गया मेरा इम्पिडेंस. अभी मेरा इम्पिडेंस ये आ गया. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट करंट. मुझे करंट कैलकुलेट करना है. तो अभी करंट कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आई कैन से दैट करंट is equal to current IRMS is equal to nothing but your ERMS upon Z. क्लियर? तो ये मुझे अभी कैलकुलेट करना है. और आई कैन से दैट इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन Z. E0 कितना है 310 अपॉन 99.0. तो ये आ गया मेरा पिक करंट. तो यहाँ पे मेरा पिक करंट आ रहा है दैट आई एम गेटिंग एज ए. और यहीं पे आई पुट लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे लिख दो ERMS के बजाय. इज इट राइट? तो यहाँ पे मेरा पिक करंट आता है आई एम गेटिंग 2.214 एम्पियर. दैट आई एम गेटिंग एज ए पिक करंट I0. क्लियर? ये आ गया I0 करंट. एंड ये आने के बाद अभी मुझे लास्ट क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है दैट इज माय फेज एंगल. तो फेज एंगल के लिए अगर आपको याद है तो ये फेजर डायग्राम, इस फेजर डायग्राम को अगर आपने याद रखा है तो दिस इज फॉर योर कैपेसिटिव सर्किट. ये आ गया आपका इंडक्टिव सर्किट. ये आ गया आपका कैपेसिटिव सर्किट. तो यहाँ पे आ गया मेरा ये ओमेगा टी. तो यहाँ पे आ गया EL, ये E0. ये आ गया मेरा XL, ये आ गया XC. तो यहाँ पे मेरा बीच में आता है दिस इज योर XL माइनस XC. तो यहाँ पे आई एम गेटिंग दिस इज XL माइनस XC. तो ये जो एंगल है ये फाई फेजर डायग्राम्स. तो आई विल राइट डाउन tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R. XL माइनस XC आपके पास है विच इज 99 वो सब्सट्रैक्शन किया था हमने, सॉरी 95.9. एंड R का वैल्यू कितना आपका 25. तो 25 3 75 मीन्स ये आएगा 3.836. सो दिस इज योर tan phi. सो आई से दैट phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 3.836. इज इट राइट? तो ये 3.836 इसको
कैन यूज अ लॉग टेबल, और लॉग टेबल में से हम लोग नेचुरल टेंजेंट ओपन करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट मुझे मिल रहा है, देखो 72 में मिल रहा है 3.8 मिल रहा है मुझे 75 के लाइन में, देखो 75 के लाइन में मुझे मिल रहा है 3.8 मिल रहा है 11, तो ये 36 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 75 डिग्री 18 मिनट। तो मेरा वहाँ पे मुझे एंगल मिल रहा है, आई एम गेटिंग द एंगल विच इज इक्वल टू 75 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली एंगल मिल रहा है 75.3 डिग्री। ये मुझे एंगल डिग्री में मिल रहा है। अगर वो डिग्री वाला एंगल मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो थीटा इन रेडियन, व्हाट आई कैन से इट इज 360 डिवाइडेड बाय ये 70.53 इंटू, तो फिर वो मुझे एंगल मिल जाएगा रेडियन। क्लियर? तो लाइक दैट मैनर वी कैन सॉल्व द problems. Fine. So today I am going to stop up till this problem. The next problem we can discuss in the next lecture.